ऐसा लगता है कि खुदाओं ने खुद तुम्हें अपने हाथों से बनाया और खूबसूरती से आरास्ता किया। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? हमारे कसर के पेशकार जनाब हुनीफुर को यहाँ बुलाओ। इसने ये अपने लिबास के नीचे छुपाया हुआ था। ये यूजारजीफ की सनत फरोख्त है बानो हुजूर। किसी शमून नामी शख्स ने यूजारजीफ को बदस्ते मालिक फरोख्त किया है। इसे तो हमारे कसर के खजाने में होना चाहिए था, ना कि तुम्हारे पास। जैसी आपकी मर्जी। बानो हुजूर, यूजारजीफ आपके सुपुर्द है। मैं चाहती हूँ कि इसकी बेहतर तौर पे तरबियत हो, कसर में जिंदगी गुजारने के तौर तरीके उम्र के साथ पेश आने के आदाब सीखे। उम्मीद है कि हमारे कसर के लायक फाइक पेशकार बतौर एहसन इस जिम्मेदारी से ओहदा बरा होंगे। क्या ख्याल है? इसका ये ताज़ीम करना अज़्रुए एहतराम है। ये सहरा नशीन चरवाहा ये भी नहीं जानता कि झुका किस लिए है, और आप ये उम्मीद रखती हैं कि इसकी ये ताज़ीम अज़्रुए एहतराम हो। इस लिबास में तो और भी खूबसूरत हो गया है। इसकी मुंह पर इतनी तारीफ मत करें, मगरूर हो जाएगा। मेरे साथ आओ। ये कमरा जो देख रहे हो, ये जुलेखा और पुतिफार के निहायत ही करीब और अजीज तरीन मेहमानों के लिए मख्तस है। इस कमरे तक आने के लिए इन 7 दरवाजों से जहां से हम गुजर रहे हैं गुजरना पड़ता है। इन 7 दरवाजों पर मजबूत कुफ्ल लगे हुए हैं कि अगर ये दरवाजे मुकफ्फल हों तो किसी को इस कमरे में आमद और रफ्त की मजाल नहीं। इन दरवाजों की चाबी सिर्फ बानो जुलेखा के पास होती है। और ये हमारे कसर का खूबसूरत तरीन मंजर है, और यहाँ से हमारे मिस्र के सबसे बड़े दरिया नील का बखूबी नजारा किया जा सकता है। और इस तरफ मगरिब की जानिब शहर खामोशा नजर आ रहा है। मेरे साथ आओ। ये बानो जुलेखा का मखसूस कमरा है। वो एक मगरूर और मुतकब्बिर अशराफजादी है। ख्याल रहे कभी भी इनके हुक्म से रूगर्दानी मत करना। चलो। ये जनाब पुतिफार की इस्तराहत गाह और किताब खाना है। पुतिफार मिस्र की दूसरी बड़ी शख्सियत है, और तुम्हें सीखना चाहिए कि उनके और दीगर अहम शख्सियात के रूबरू बतौर एहतराम किस तरह कोलिश बजा लाना है। और वो है सूफर जनाब पुतिफार का मखसूस खिदमतगार और किताबदार। चले। ये जनाब पुतिफा और बानो जुलेखा के खाना खाने का मखसूस कमरा है।
مجھے یوسف کو نجات دلانی ہوگی. مجھے کچھ کرنا ہوگا. مجھے کچھ کرنا ہوگا. کیا یوسف کسی قید و بند یا زندان میں ہے جو اسے نجات دلاؤ گے؟ مگر پھر بھی وہ ایک غلام ہے. لیکن اس پرشکو قصر میں اس کا حلیہ غلاموں کا سا نہیں تھا. اگر کسی پرندے کا قفس خوبصورت ہو تو کیا وہ پرندہ اسیر نہیں ہے؟ میں اس وقت تک مصر کو ترک نہیں کروں گا جب تک کہ یوسف کو یعقوب نبی کے پاس نہ لے جاؤں. لیکن تم نے دیکھا کہ عزیز مصر اور ان کی ملکہ یوسف کو کس قدر چاہتے ہیں. لیکن یعقوب نبی جتنا نہیں. مجھے یقین ہے کہ وہ یوسف کی جدائی کی آگ میں جل رہے ہوں گے. لیکن مالک، یوسف نے بتایا تھا کہ اس کا مصرانہ ارادہ خداوندی کے تحت ہے. یہ میرا آخری تجارتی سفر تھا. تم جلد سے جلد مال تجارت فروخت کر کے بابل واپس لوٹ جاؤ. یہ خدمتگاروں اور غلاموں کا رہائشی حصہ ہے. ان میں سے کچھ تو قصر پوتیفار کے کاریگر ہیں اور کچھ یا تو قصر کے مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں یا کپاس اور نرسل کے کھیتوں میں کاشتکاری کرتے ہیں. ان میں سے اکثر مرد و خواتین اس وقت مصروف کار ہیں. ان میں سے ہر ایک کمرے میں ایک خاندان رہائش پذیر ہے. یہ لوگ اتنی مفلسی و بدحالی کا شکار کیوں ہیں؟ جناب پوتیفار ان پر کوئی توجہ کیوں نہیں دیتے؟ ٹپس میں دیگر خدمتگار، غلام اور مزارع وغیرہ بنسبت ان کے کہیں بدتر حالت میں ہیں. ہم انہیں رہنے کے لیے مکان اور مناسب غذا فراہم کرتے ہیں اور ان کی اور ان کے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیا میں کبھی کبھی ان سے ملنے آ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، لیکن بہتر ہوگا کہ بانو زلیخا اور عالی جناب پوتیفار سے اجازت لے. یہ غلام ہماریاں اٹھانے کے لیے مخصوص ہیں. چلو. یہاں پر نرسل سے کاغذ تیار کیا جاتا ہے. درود پر عالی جناب ہونے پر. نرسل کتابت کے کام آتا ہے. ہم تو کتابت کے لیے حیوانات کی کھال استعمال کرتے ہیں. یہ جانوروں کی کھال سے کہیں بہتر ہوتا ہے. تم لکھنا جانتے ہو؟ جس نے مجھے خلق کیا ہے اسی نے لکھنا بھی سکھایا ہے. یہ تو بہت اچھا ہے. جو غلام لکھنا جانتا ہے وہ اس کے مالکوں کے لیے بڑی نعمت ہے. کیا کہا تم نے؟ کس سے سیکھا ہے؟ اس مربی سے جو میرا مختار ہے. وہ تمام زبانیں جانتا ہے. یہ اچھی بات ہے. چلیں.
یہاں کتان کپڑا بنا جاتا ہے۔ کتان وہی کپڑا ہے جو ہم کمر کے گرد باندھتے ہیں اور اس سے لباس تیار کرتے ہیں۔ نفیس ترین کتان جو یہاں تیار ہوتی ہے وہ شاہی کتان کے نام سے معروف ہے۔ یہ کارخانہ صرف اہلیان قصر کے لیے کتان کپڑا تیار کرتا ہے۔ بانو زلیخا وہ مصری اشراف زادی ہیں جن کے لیے اس کارخانے میں نہایت نفیس اور خوبصورت کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ چلو یہ کارخانہ ہے سفالگری۔ درود بر عالی جناب ہونی پر۔ آب رسانی کی چند نالیاں سواری گزرنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی ہیں، انہیں تبدیل کرنا ہے۔ اس ناپ کا ہے نا جناب؟ ہاں ہاں، اسی ناپ کا ہے۔ ان کے تیار ہوتے ہی تبدیل کرا دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ اناج کا گودام۔ باورچی خانے کی ضرورت کی تمام اشیاء خورد و نوش کی نگہداری یہاں ہوتی ہے۔ تمہارے حواس کہاں ہیں؟ ٹھیک سے کام کرو۔ یاد رہے، آج کے بعد جب تک تمہیں بلایا نہ جائے اور کوئی سوال نہ کیا جائے جواب نہیں دو گے۔ زلیخا ایک متکبر خاتون ہے اور بسا اوقات درباریوں کی طرح سخت گیر اور بے رحم بھی ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ قصر کا باورچی خانہ ہے۔ یہاں مختلف افراد کے لیے مختلف غذائیں تیار کی جاتی ہیں۔ خدمت گاروں اور غلاموں کے لیے الگ، قصر کے منتظمین اور مسئولین کے لیے الگ، اور جناب پوتیفار اور بانو زلیخا کے لیے کھانے کا الگ اہتمام کیا جاتا ہے۔ مختلف قسم کی غذائیں کیوں؟ کیا سب کے لیے ایک ہی قسم کا کھانا تیار نہیں کیا جا سکتا؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جناب پوتیفار اور بانو زلیخا غلاموں اور خدمتگاروں کے برابر تو نہیں ہے نا؟ یہ یوزار شیف آج سے یوزار شیف غذا کی تقسیم میں آپ کی مدد کرے گا۔ یوزار شیف پڑھنا لکھنا جانتا ہے، چنانچہ اس فہرست کے تحت جو ہم اسے دیں گے ہر شعبے کو اس کی تعداد کے مطابق غذا تقسیم کرے گا۔ دیکھ رہے ہو کس اشتیاق سے تمہیں دیکھ رہے ہیں، صرف تمہاری خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ جاؤ اپنا کام کرو، اپنا کام کرو۔ یہ قصر کا عبادت خانہ ہے۔ پوتیفار اور بانو زلیخا اور دیگر اہلیان قصر یہاں عبادت کرتے ہیں۔ ہم اپنے خداؤں کی یہاں نگہداری کرتے ہیں۔ یعنی آپ کے خدا جاؤ مکان کے محتاج ہیں؟ تو ظاہر ہے دھوپ اور بارش میں زیر آسمان تو نہیں ہونا چاہیے نا؟
درود بر جناب ہونے پر پیشکار اعلیٰ، عموماً قصر کے دورے کے لیے صبح کا وقت مخصوص ہے، آج خلاف معمول اس وقت کیسے؟ یزارشیف کو قصر دکھانے کے لیے لایا ہوں۔ میں نے چاہا کہ وہ قصر اور اہلیان قصر سے آشنا ہو جائے۔ کیا ہو گیا ہے؟ قصر سے کچھ جواہرات چوری ہو گئے ہیں۔ یہ قصر کے داخلی دربان ہیں اور ان دونوں میں سے کوئی بھی اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ دونوں کو ہی نگہبانوں اور ساکنان قصر کی عبرت کے لیے تختہ دار پر چڑھا دو۔ اگر اقرار نہ کریں تو حتماً ایسا ہی کرو۔ میں نے بالکل چوری نہیں کی ہے، میں بے قصور ہوں۔ اس طرح تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن جناب ہنیفر، خداؤں کی قسم میرا کوئی قصور نہیں، سب جانتے ہیں میں نے کبھی چوری نہیں کی۔ اصل میں جس روز چوری ہوئی وہ میری نگہبانی کا دن نہیں تھا، پتہ نہیں یہ مجھے کیوں پکڑ کر لائے ہیں۔ آخر کار تو ہمیں مجرم کا پتہ چل ہی جائے گا۔ بہتر ہوگا کہ خود ہی اقرار کر لو اور مسئلے کو یہیں ختم کر دو۔ اس کا کہنا ہے کہ تم اس کا دھیان بٹتے ہی اس کی ماموریت کی جگہ پر داخل ہوئے تھے۔ میں اس کی ماموریت کی جگہ پر؟ یہ سچ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ غلطی ہو گئی، میں مجبور تھا۔ اس طرح بتاؤں کہ چند لمحوں کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ یعنی اس قصر میں کوئی شخص بھی ایسا نہ تھا جس نے مجھے دیکھا ہو؟ نگہبان کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کے دوران نہایت ہوشیار اور چوکنا رہے۔ تمہیں سونا نہیں چاہیے تھا۔ تم خطاکار ہو۔ تم نے ایک تو اپنی ذمہ داری سے غفلت برتی اور دوسرا یہ کہ تمہارا کوئی گواہ بھی نہیں ہے۔ لیکن عالی جناب میں چور نہیں ہوں، مجھ پر رحم کیجیے۔ مجھے افسوس ہے۔ نینیفر کپتا کو آزاد کر دو اور اس کو زندان میں ڈال دو۔ عالی جناب میں چور نہیں ہوں، خداؤں کی قسم میں نے چوری نہیں کی ہے، مجھ پر رحم کریں۔ تم پر خداؤں کی لعنت ہو نینیفر، تم پر خداؤں کا قہر ٹوٹے، انہیں حقیقت کیوں نہیں بتا دیتے؟ منہ بند کرو۔ عالی جناب میں چور نہیں ہوں، سچ کہتا ہوں میں نے چوری نہیں کی ہے۔ عالی جناب میں چور نہیں ہوں۔ میں چور کی شناخت کر سکتا ہوں۔ نہیں برخوردار، یہ تمہارا کام نہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ چور کی شناخت ہو؟ کیوں نہیں؟ تم کیسے چور کی شناخت کرو گے؟ میں نے اپنے بابا سے سیکھا ہے، وہ فیصلہ دینے میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ تمہیں یقین ہے؟ جی جناب حنیفر، آپ چاہیں تو آزما لیں۔ دیکھ لیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ چور کون ہے، بہتر ہوگا اعتراف کر لیں اور اپنے جرم کو مزید سنگین نہ کریں۔ اصل میں جس دن قصر سے جواہرات چوری ہوئے میں پیرے پر تھا ہی نہیں، میں بے گناہ ہوں۔ میں نے چوری نہیں کی، میرے پاس گواہ بھی نہیں، لیکن میں نے نینیفر کو جواہرات کے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ بے گناہ کون ہے میں جانتا ہوں، تم خوف میں مبتلا مت ہو، اور گناہگار کو بھی خوب پہچانتا ہوں، جلد یہ سب بھی اسے پہچان لیں گے۔ میں جناب حنیفر سے درخواست کرتا ہوں کہ جیسے ہی گناہگار کی نشاندہی کروں فوراً اس کی گردن اڑا دی جائے۔ مجھے بس اس کا پتہ چل جائے۔ رودامون تیار کھڑا ہے۔ میں اسے مہلت نہیں دوں گا، بس ایک اشارے کی دیر ہے۔ جناب رودامون، ان دونوں کو اس باغیچے کے سامنے میں 2 زانوں بٹھا دیں۔
इनकी आंखों पर पट्टी बांध दें। रुमाल लाओ। इनके हाथ बांधो। एक बार फिर चोर को मोहलत दी जाती है। अगर खुद एतराफ़ जुर्म कर ले तो बख्श दिया जाएगा, लेकिन अगर हमने उसकी निशानदेही कर दी तो जनाब रुदामून यहीं पर उसकी गर्दन उड़ा देंगे। चोर ये है, अपनी तलवार निकाल ले। यही चोर है, इसकी गर्दन उड़ा दें। नहीं नहीं, मैं एतराफ करता हूँ कि चोरी मैंने की है। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए जनाब रुदामून। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी एतराफ कर लोगे। आफरीन युजार सिर्फ, आफरीन। ले जाओ इसे। आफरीन बरखुरदार, बहुत खूब। मुझे यकीन न था कि कामयाब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा मशकूर हूँ युजार सिर्फ। अगर तुम ना होते तो मैं बेगुनाह मारा जाता। तुम पर खुदाओं की रहमत हो। तुम्हारी बेगुनाही साबित करना मकसूद ना होता तो नैनीफर को हरगिज शर्मिंदा ना होने देता। ये इतना भी मासूम नहीं। अगर दोबारा कभी अपनी जिम्मेदारी से गफलत बरती तो सख्त सजा के मुस्तहक करार पाओगे। शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ। बहुत खूब बेटा, अब चलें, मेरे साथ आओ। कितना ज़हीन और होशियार है। देखा किस तरह उससे उगलवाया है। खूबसूरत भी है और ज़हीन भी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा है कैसे इस बच्चे ने यह मसला हल कर दिया। वो जो समझ रहा था कि बस उसकी गर्दन अब कटी, तेजी से अपनी जगह से उठा और अपने गुनाह का एतराफ कर लिया। वो कह रहा था, नहीं नहीं, मुझे मत मारो। हाँ, मैंने चोरी की है, मैं गुनाहगार हूँ, मैं एतराफ करता हूँ। और यूं युजार शेफ की इस तरकीब ने सबको बरताए हैरत में डाल दिया। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतना सा बच्चा और इतना अक्लमंद होगा। फिर तो मुझे जनाब पुतीफार का इस गरां कदर हदिये की बाबत शुक्रगुजार होना चाहिए। युजार शेफ पढ़ना लिखना भी जानता है। आज से कोई भी इजाफी गदा नहीं ले जा सकता। युजार शेफ हर शख्स को उसका हिस्सा फहरिस्त में लिखी गई मिकदार के मुताबिक देगा। एक गुलाम का पढ़ा लिखा होना किसी नेमत से काम नहीं। युजार शेफ के कयाम का कहाँ बंदोबस्त किया है? अभी सोचा नहीं बानो। जाहिर है कि गुलामों के साथ इसमें सोचने की क्या बात है। नहीं, गुलामों के साथ नहीं, यही इसी कसर में से होना चाहिए। वो कमरा जो मैंने तुम्हें दिखाया था। ये बताओ युजार शेफ, तुम्हें वो कमरा पसंद है? शुक्रगुजार हूँ। अगर इजाजत फरमाए तो मैं चाहूँगा कि मेरा कमरा भी दीगर खिदमतगारों और गुलामों के साथ ही हो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें कहाँ और किसके साथ रहना चाहिए। समझ में आया? कसर में गुलाम की मौजूदगी कसर के कवानीन के खिलाफ है और दीगर गुलामों और खिदमतगारों की बगावत का बाइस बनेगा। जब मैं और खुदावंद कसर जनाब पुतीफार इस बच्चे से दिली वाबस्तगी रखते हैं तो औरों को इज़हार ख्याल का कोई हक नहीं।
युजारशीफ, मेरे बेटे, मेरी कोई औलाद नहीं है। तुम मुझे अपने बाबा की तरह समझो और कोई भी मुश्किल हो तो मुझसे कहना। शुक्रगुजार हूँ। बेचारे मेरे बाबा, खुदा उन्हें सब्र दे। सुनो एक कनान के भेड़ियों, मैं तुमसे मुखातिब हूँ, खामोश क्यों हो? बाबा, क्या भेड़िए भी बातें करते हैं? नहीं मेरे बच्चे, लेकिन अगर खुदावंद चाहे तो मेरी बात का जवाब जरूर देंगे। देखो बेटा, देखो बेटा, आ गए। आखिर तुम लोगों ने अपने भाई पर क्या आफत ढाई है? तुम बताते क्यों नहीं लावी? बाबा वो भेड़िए। झूठ बोलते हो। भेड़ियों ने इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें यूसुफ की कोई खबर नहीं। भेड़िए ने? बाबा जान, भेड़िए ने किस तरह इनकार किया? मैंने भी सुना है। भेड़िए ने बाबा से बातें की, बताया कि यूसुफ को हमने नहीं खाया है। इससे पहले कि देर हो जाए बता दो कि तुम लोगों ने यूसुफ के साथ क्या किया है। अभी भी वक्त है। हमें खुद नहीं पता, बहुत ढूंढा। भेड़िए। भेड़ियों पर तोहमत मत लगाओ। जो कुछ किया है तुम भेड़िया सिफतों ने किया है। आओ तौबा कर लो और हकीकत बता दो। खुदा हर किसी को तौबा की तौफीक नहीं देता, बिलखुसूस उन लोगों को जिनके कुलूब पत्थर के हो जाएं। खुदा निगहबान मालिक, फिर मिलेंगे। खुदा निगहबान।
यूजारसेफ को यहाँ लेकर आओ। तुम्हारे साथ गुजारे इन चंद सालों में मुझे अंदाजा हो गया कि मैं कभी भी साबे औलाद नहीं हूंगा, और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मां बनने की नेमत से महरूम रखूं। पहली बात तो ये कि अब रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हुए चंद साल हुई है। क्या मालूम मुस्तकबिल में साहिब औलाद नहीं होंगे। मेरे खुदावन जनाब पोतीफार से मेरी वाबस्तगी औलाद की खातिर नहीं है। मैं आपकी इस मोहब्बत की कदर करता हूँ, और इसी मोहब्बत के पेश नजर मैंने यूजारसेफ को आपकी खिदमत में पेश किया था, क्योंकि जानता था कि इस बच्चे की मौजूदगी आपकी खुशी और मुसरत का बाइस होगी। कोई चीज आपकी मोहब्बत से बढ़ के मेरी खुशी का बाइस नहीं। यूजारसेफ को भी चूंकि आपका हदिया है, चाहती रहूंगी। आपका क्या ख्याल है कि अगर कभी हम साबे औलाद हो गए तो क्या हमारा बच्चा भी यूजारसेफ की तरह खूबसूरत दिलनशी होगा? शायद, लेकिन इसकी तरह ज़हीन और फतीन तो हरगिज नहीं होगा। तुमने ऐसा क्या किया है कि बानो जुलेखा तुम्हारी इतनी तारीफें करती है? जनाब पुतीफार, आज यूजारसेफ ने चोर की शिनाख्त के लिए जो चाल चली है, उसने सबको हैरत में डाल दिया है। आली जनाब, आज कसर में हर तरफ यूजारसेफ की फहम फरासत के चर्चे हो रहे हैं। सब कह रहे थे यूजारसेफ ने नैनीफर किप्ता को कैद करवाया है। तुमने पहले रोज ही साबित कर दिया है कि तुम बानो जुलेखा के मुंह बोले बेटे बनने की अहलियत रखते हो। मैंने खुद सुना, वो उसे अपना मुंह बोला बेटा बनाने का इरादा रखते हैं। जुलेखा ने उसे बतौर फर्जंदे मुतमन्ना कबूल कर लिया? कहा तो कुछ नहीं, गालिबन मुत्तफिक हैं। ये कैसी अफवाहें हैं जो हर तरफ फैली हुई हैं? मेरा ख्याल है मैं जानती हूँ, यकीनन यूजारसेफ के मुतालिक है। क्या यूजारसेफ की फर्जंद मुतबन्नी वाली बात दुरुस्त है? अच्छा इंतखाब है ना? ये मिस्र के आईन और कानून और उसके रस्म रिवाज के बरखिलाफ है। यूजारसेफ एक अजनबी है और अदना तबके से ताल्लुक रखता है, और आप जैसी अशराफ सादी से कोई मेल नहीं रखता। जब मेरा फर्जंद बन जाएगा तो वो भी नाम और मकाम और मर्तबे का हामिल हो जाएगा। और उसके आईन और ईमान का क्या करेंगी? क्या मालूम कि वो आमून का दुश्मन और आईन मिस्र का मुखालिफ नहीं है? अजीब बातें कर रही हैं। बच्चों का जहन कोरे कागज की मानंद होता है, जिस पर जो चाहे बासानी तहरीर किया जा सकता है। इस इरादे को अमली जामा पहनाने से बाज आ जाइए, ये बेहतर नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। आप भी बेहतर होगा मायूस कुन बातें करने के बजाय मेरी मदद करें। तो फिर मुझे हुज्जत तमाम कर लेने दीजिए। मैं आज माबद आमून के जादूगर के पास गई थी और उन्हें यूजारसेफ के बारे में आगाह किया। आप जानती हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये बच्चा जुलेखा का दुश्मन है और ये आपको इस जिंदगी से बेजार कर देगा और उन खुदाओं से मुतनफर कर देगा। जादूगर ने बताया, आप आखिरकार किसी दूसरे खुदा की परस्तिश करने लगेगी। ये क्या फजूल बातें कर रही हैं? वो एक बच्चा है। बच्चे को मैं जैसे चाहूँ तरबियत करके ढाल सकती हूँ, समझी तुम?
कल से उसे तैयार करके मेरे पास लाना, समझी तुम? मैं चाहती हूँ उसे मिस्री आदाब और रसूमात से आशना करूँ। इस काम में मेरी मदद करें। मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ मानो। अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, लेकिन कल को ये मत कहिएगा कि कारी मामा ने बताया नहीं। मैं जनाब पुतिफार का खाना लेने आया हूँ। यूजार साहब की अदम मौजूदगी में हम ये नहीं कर सकते। खाने की तकसीम के इख्तियारात उन्हीं के पास हैं। उसने खूब अपनी जगह बनाई है। पुतिफार और जुलेखा उसे अपना फर्जंद मुतबन्ना बनाने का इरादा रखते हैं। रास्ता दें, एक तरफ हो जाए। कसर के तमाम अफराद की कुल तादाद की फहरिस्त यूजार सेफ के पास है। हर शख्स और हर शोबे के लिए जितनी मिकदार ये कहे ग़िज़ा दे दें। निगहबानों के लिए ग़िज़ा 5 अफराद की। अफराद। माबद के काहिनों की तादाद तो 5 है, 20 अफराद का हिस्सा क्यों? तो क्या माबद के खुदाओं को ग़िज़ा की जरूरत नहीं? तो क्या माबद के खुदा खाना भी खाते? नहीं, नहीं खाते। लेकिन क्या बंदों की ग़िज़ाओं को मुतबरक करने के लिए खुदाओं के हुजूर में हदिया नहीं करना चाहिए? और जब तमाम खुदा इस ग़िज़ा को मुतबर्रिक कर देते हैं तो इसे कौन खाता है? वो जो ग़िज़ा मुतबर्रक कर देते हैं वो खुदाओं के माबद के काहिनों और खादिमों का हिस्सा हो जाती है। इस तरह तो हर काहिन दूसरों की बनिस्बत 4 गुना खाना खाता है। इसी वजह से काहिन ज्यादा मोटे ताजे हो जाते हैं। काहिन और उनसे वाबस्ता अफराद तो हर रोज खुदाओं की बरकत से मोटे ताजे होते जा रहे हैं, जबकि दीगर कारकुनान को हस्बे जरूरत ग़िज़ा भी मुयस्सर नहीं। और क्या? अगर खुदा इस ग़िज़ा को मुतबर्रिक ना भी करें तो क्या हो जाएगा? यकीनन वो हमारे मैदों में गड़बड़ मचा देंगे। बस करो। अगर खातमे ने मोहब्बत से शर्म नहीं करते, कम से कम खुदाया ने मोहब्बत से तो कुछ हया करो। चलो। ये जादूगरनी अब गई है ताकि यूजार सीफ के खिलाफ जहर उगले। यहाँ तो माबद के काहिनों की तादाद 5 लिखी हुई है, लिहाजा 5 अफराद से ज्यादा ग़िज़ा नहीं मिल सकती। ये तुम्हारा मसला नहीं है। हमने हमेशा 20 अफराद का हिस्सा लिया है। आज ये जितना कह रहे हैं इन्हें दे दो। जनाब हुनीफर इस मसले को खुद हल करेंगे। नाम पे खुदाओं के, पेट में काहिनों के। आज तक किसी ने भी उनकी इस धांधली पर एतराज नहीं किया था। आफरीन है बरखुरदार, आफरीन। एक वो थी नैनफर किप्ता की रुसवाई और एक ये है काहिनों की रुसवाई। देखा इस बच्चे ने किस तरह नैनफर किप्ता को जिंदान का रास्ता दिखाया। बड़ा ही निडर और ज़हीन बच्चा है जनाब हुनीफर। अच्छा, तो क्या हो रहा है यूजार सेफ? कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? नहीं आली जनाब। यूजार सेफ का माबद के काहिनों से झगड़ा हो गया था।
ये उनकी इरादा तलबी के माने हो रहा था। कारी मामा भी इस तमाम माजरे की शाहिद है। मेरा ख्याल है कि कारी मामा और काहिनान इस बच्ची के खिलाफ कोई साजिश करेंगे। आली जनाब का खाना तैयार? जी आली जनाब। उठा कर ले चलो। तुम भी आओ युजार शेख। इनकी ग़िज़ा हर रोज की तरह इन्हें दो जब तक युजार शेख वापस लौटे। चलें। आप तो नहीं थे कि जो देखते कि लोग हम पर किस तरह हंस रहे थे। कारकुनाने कसर भी उसी का साथ दे रहे थे। यानी पोतीफार ने तकसीम ग़िज़ा की जिम्मेदारी एक बच्चे को सौंप दी है। होनीफर ने उसे जिम्मेदारी दी है। मुझे यकीन है कि वो काफिर है और हमारे खुदाओं को नहीं मानता। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं पोतीफार और जुलेखा से बात करूंगा, परेशान मत होना। युजार सेफ, कहाँ हो तुम? यहाँ हो। नेमी साहबो, क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम काफिर हो और हमारे खुदाओं की परस्तिश नहीं करते? तुम कहना क्या चाहते हो? अभी खुफू काहिन माबूद के खादिम बेंगिस से कह रहे थे कि अगर साबित हो गया कि तुम हमारे खुदाओं की परस्तिश नहीं करते तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर मेरे खुदा ने चाहा तो मुझे कुछ नहीं होगा। बताया नहीं? क्या तुम काफिर हो? मैं तुम्हें इत्मीनान दिलाता हूँ कि मैं काफिर नहीं हूँ और खुदा की परस्तिश करता हूँ। किस खुदा की बात कर रहे हो? तुम्हारा खुदा, मेरा खुदा, सबका खुदा। ओह, अब मुझे इत्मीनान हो गया। तुम्हें पता है खुदा ने तुम्हें मेरी निजात के लिए भेजा था। मुझसे कुछ कहा? नहीं, मैं खुद से बोल रहा था। कुछ नहीं, तुम जाओ। आ रहे हो? मिलकर खेलेंगे। हाँ, आता हूँ। काश आप देखती, कस्र के तमाम लोग उसके साथ मिलकर काहिनों का मजाक उड़ा रहे थे। मुझे बताओ, एक बच्चा किस तरह काहिनों की तहकीर और तज़हीक का बाइस बन सकता है? किनायतन कह रहा था, काहिन खुदा के नाम पर ग़िज़ा लेते और खुद अपना पेट भरते हैं। मैं इस सिलसिले में उससे बात करूंगी। मुझे यकीन है कि वो ना आमून की परस्तिश करता है और ना खुदाओं की। जनाबी पोतीफार बानो के मुंतज़िर हैं। ज़ोहराने का वक्त हो गया है। इस बच्चे से मोहतात रहें। अगर इसने अरबाब माबद को गुस्सा दिला दिया तो ये अपनी ही जान को खतरे में डाल देगा।